Hello students, how are you? Here in this video we are going to discuss the differences between new education policy and previous education policy. Basically क्या difference है new education policy और यानी करंटली एजुकेशन पॉलिसी वी कैन से दैट जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो द करंटली दैट एजुकेशन पॉलिसी वी आर अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज द एजुकेशन पॉलिसी इज 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी जो हम फॉलो कर रहे हैं करंटली. उसमें क्या था, इट वॉज स्टार्टेड इन 1986 and first amendment in education policy that was done in 1968 and now we follow this and a little bit modification was there in 1992 and after that we can say that one major improvement that we so जो कि हमने देखा है in एजुकेशन पॉलिसी 1986 जिसे हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज इन 2009. That is in 2009 the major difference that we have seen in previous education policy जिसे हम कह सकते हैं that was related to act, right to act, right to education act 2009, that was related to right to education act 2009 and it is a parliamentary act that was enacted on 4th August 2009. So ये क्या था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. It was an act of Parliament of India. It was an act of Parliament of India that was enacted on 4th August 2009 that was related to right to education act 2009 or we can say that right of children for free, we can say that right of children for free and compulsory education, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 जिसे हम कह सकते हैं. ओके, नाउ द आफ्टर गैप ऑफ 34 years न्यू एजुकेशन पॉलिसी that was approved by our union cabinet on, but after a gap of 34 years new education policy that was approved by union cabinet on 29th जुलाई 2020. कब अप्रूव किया गया था इसे, 29th जुलाई 2020, दैट इज टू बी नोन एज NEP 2020 जिसे NEP 2020 के नाम से जाना जाता है. अर्लियर द नेम ऑफ एजुकेशन पॉलिसी वॉज NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एंड नाउ इट इज NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. एंड हेयर आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स, कस्तूरी रंजन जो कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और नॉट इवन अ सिंगल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट वॉज लेफ्ट विदाउट डिस्कशन. किसी पंचायत को, किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं छोड़ा गया. हर एक फील्ड मतलब निचले से निचले स्तर पर जाकर डिस्कस किया गया कि किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए एंड आफ्टर दैट एक पॉलिसी को बनाया गया एंड दैट वाज approved on 29th of July 2020 by Union Cabinet. Okay, so now we are going to discuss the difference or we can say the differences between NPE and NEP. क्या difference है? What are the major differences? Okay, so the very first difference जो हमें लगता है, ठीक है, that is related to concept. ठीक है, so first difference I'm going to rub it so that I may write it perfectly. So नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो मेजर डिफरेंस है, ओके, हम वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल. फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट.
First one is related to concept. Earlier it was based on the concept of access and equity. सबसे पहले जो थी पॉलिसी, और वी कैन से दैट करंटली जो हम फॉलो कर रहे हैं वो किस पर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन एक्सेस एंड इक्विटी. आई एम गोइंग टू राइट दीज वर्ड्स, एक्सेस and equity. So here student, access का meaning क्या है? Access means availability and equity means fairness. So we can say that previously it was just about having access of education. We can say that it was just about having access of education. It was just about having access of education. Now, अब कौन से कॉन्सेप्ट पर है? Now, as you see that we have indeed comes a long way since 1986. However, today it is about access of quality education. Access of quality education. अब हम it was based 1986 NPE was based on the concept of access and equity. Means it was about having access of education. Yes, we have come to that point now. This is the time, or we can say that it is the peak point. There should be quality education. अब हम उस concept को complete कर चुके हैं. We are approximately on the stage of having access of education for everyone. Now, what is the need of the hour? The need of the hour is the quality education. So concept में जो change आया है यहाँ पर, that is related to क्वालिटी एजुकेशन. अब क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, है ना? बट टुडे इट इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन. सो इट वाज अबाउट हैविंग एक्सेस ऑफ एजुकेशन, बट टुडे इट इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन. अब ये किस बारे में है? दिस इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज related to GDP. अब पहले जो था, हम अपनी जो फॉलो कर रहे हैं करंटली, हम कह सकते हैं तो हम डिफरेंस कर रहे हैं, तो पहले और अब की नीति को देखते हुए तो इस तरीके से बोल रहे हैं, बट यस करंटली हम फॉलो तो यही कर रहे हैं. तो अब तक हम कितना % जीडीपी का एजुकेशन में हमें मिल रहा है? दैट इज 3%. जीडीपी का कितना % हमें मिल रहा है? वी आर गेटिंग 3%. Now we are going to get in new education policy 6% of GDP on education. Again, it is a good thing. ये बहुत अच्छी चीज है. Now the third point that is related to, जो third point है वो relate करता है school fee से. Third point is related to school fee. Okay, so earlier it was a system according to infrastructure, according to facilities, those are given by schools to the students, private school to the students. They could charge fees according to that. वो उसके अकॉर्डिंग फीस को चार्ज कर सकते थे. बट नाउ देयर विल बी कैटेगरीज ऑफ द प्राइवेट स्कूल एंड अकॉर्डिंग टू those categories they can charge fee from the student. Means that provision and that decision will made by the government, will make by the government. वो decision बनाया जाएगा, will be implemented by the government. So अपनी मर्जी से कोई भी प्राइवेट स्कूल फी को चार्ज नहीं कर सकते हैं. So according to category they can charge fee. कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो फी चार्ज कर सकते हैं. ओके, नाउ next thing is related to vocational training. next concept और fourth point हम कह सकते हैं, fourth point is related to vocational training. Earlier there was no provision related to vocational training, but now with the implementation of new education policy there will be the provision of vocational training. vocational training का provision होगा. The next
but most important thing is related to result. As you know that yes, there is provision in result related to assessment also, है ना. Formative assessment is there and other kind of assessments are there, like notebook के marks लगते हैं, बच्चा कितना present है, according to that marks are there. But yes, there is wonderful change in the result system also. Now it is divided into category. अब इसे categories में divide कर दिया गया है और किस तरीके से divide किया है वो हम discuss करने वाले हैं. Yes, but the fourth point कौन सा हमने discuss किया है? That was related to vocational training. ठीक है, अर्लियर नो प्रोविजन, बट यस नाउ वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोविजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में. एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट. अगर हम रिजल्ट की बात की जाए तो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, तो थोड़ा चेंज है वहां पर. फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू रिजल्ट. किस तरीके से अब हम रिजल्ट प्रिपेयर करने वाले हैं, किस तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर होगा. सो लेट्स सी. अब देखिए रिजल्ट के रिगार्डिंग. सो नाउ अब इसे डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में. रिजल्ट यानी कि स्टूडेंट को मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं, किस तरीके से मिलने वाले हैं. ऑब्वियसली मार्किंग सिस्टम विल बी देयर, है ना. मार्क्स तो उनको मिलेंगे, उनके जो टेस्ट होंगे उस बेस पर, सेमेस्टर सिस्टम में जो उनको एनालाइज किया जाएगा उस बेस पर. बट अब सिर्फ मार्क्स से काम नहीं चलने वाला है, या फिर जो ग्रेड्स उसे मिलते थे उससे नहीं, बट अब उसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंट किया गया है, सुधार किया गया है. दैट इज रिलेटेड टू असेसमेंट पार्ट. और असेसमेंट को भी बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट पार्ट. फर्स्ट वन इज सेल्फ असेसमेंट पार्ट. अब सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट में आपको क्या मिलने वाला है. सो सेल्फ असेसमेंट में होगा कि एट व्हाट लेवल यू फॉलो टाइम टेबल, हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू, आप किस लेवल पर टाइम टेबल फॉलो करते हैं. हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू, आप कितना कॉन्फिडेंट है. हाउ मच सीरियस आर यू इन द कंप्लीशन ऑफ होमवर्क. इस तरीके के मैं कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ. इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा क्वेश्चनियर, और वो क्वेश्चनियर फिल करना होगा स्टूडेंट को अपनी सेल्फ असेसमेंट के आधार पर. सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मार्किंग. ये भी किसका पार्ट है, मार्किंग का. इसमें इंक्लूड होगा स्टूडेंट आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, एट व्हाट लेवल, कि आप कितने लेवल पर टाइम टेबल को फॉलो करते हैं. हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. हाउ मच सीरियस आर यू अबाउट योर स्टडी, एंड आप कितना ओबे करते हैं टीचर को. इस तरीके से व्हाट हाउ वाले क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, क्वेश्चनियर फ्रेम किया जाएगा रिलेटेड टू सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. नॉट ओनली दैट, इन असेसमेंट पार्ट असेसमेंट रिलेटेड टू फ्रेंड्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड. नाउ फॉर एग्जाम्पल वन स्टूडेंट इज इन 8th स्टैंडर्ड. सो ऐसा नहीं है कि उसकी सेल्फ असेसमेंट हो गई, मार्क्स मिल गए, हो गया, ग्रेड क्लियर हो गया, पास वो. नो, नाउ देयर विल बी असेसमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ फ्रेंड सर्कल ऑल्सो. फ्रेंड सर्कल की तरफ से भी असेसमेंट होगा, है ना. वो भी उसको क्या करेंगे, दे विल गिव हिम ग्रेड, वो उसे ग्रेड देंगे. अब क्या बेनिफिट है, फ्रेंड्स ग्रेड देंगे. और ये फ्रेंड्स वाले पार्ट को ऐड करने की क्या जरूरत है. इन दिस वे द गुड बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल विल इंक्रीज. मतलब उनका जो गुड बिहेवियर होगा उसमें इंप्रूवमेंट होगा, है ना. दिस विल इंप्रूव द गुड बिहेवियर ऑफ प्यूपिल. ये जिस तरीके से फ्रेंड्स जो ग्रेडिंग देंगे ये क्या करेगा, दिस विल इंप्रूव, दिस विल improve good behavior of
प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स का अच्छा बिहेवियर होगा वो। अब आप कहेंगे कैसे, लाइक इस तरीके की ट्रेनिंग आप लेते हैं, पीडी क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन पार्ट, ग्रेजुएशन करने के बाद लाइक जॉब में भी इस तरीके से आपको एनालाइज किया जाता है कि आप में टीम में काम करने की एबिलिटी कितनी है। यानी ये जो फ्रेंड्स वाला असेसमेंट पार्ट है ना, ये आपकी टीम लर्निंग को भी इंक्रीज करेगा कि आप टीम के साथ कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। ये आपकी कोलैबोरेशन की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको जज किया जाएगा और धीरे धीरे आपकी इन क्वालिटीज को ब्रश अप किया जाएगा, है ना। जो आप बाद में असेसमेंट पार्ट सीखते हैं जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए, दैट विल बी फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ and there will be good improvement in your personality also. Like previously जो moral education वाला सिस्टम था, moral education थी, है ना, वो भी बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए थी। सो पहले सब्जेक्ट स्टडी किया जाता था, अब उन चीजों को रियल में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। So that is the best part. Now there will be assessment from the side of teachers also. टीचर्स की तरफ से भी असेसमेंट होगा कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, कितना पंक्चुअल है, कितना फॉलो करता है टीचर्स को। सो इस तरीके से असेसमेंट पार्ट्स होंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। So till now we have discussed related to concept. First concept was related to access and equity. Now the concept of quality education we are going to get in new education policy 2020. Next was related to school fee. Now there will be category of private school related to the fee of the students. They can charge fee according to the category. Okay. And after that vocational training, earlier there was no provision of vocational training, but yes, in new education policy there will be provision of vocational training that will make students more confident. और बहुत सारे फील्ड्स हैं एजुकेशन के बाद भी कि जिसमें वो अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट वाज रिलेटेड टू रिजल्ट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं एंड before going further, here I want to tell you one thing. Purpose, यानी अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो पर्पस होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा, है ना। आप 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, MA में है, मास्टर्स कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देयर विल बी रीजन बिहाइंड दैट, देयर विल बी पर्पस बिहाइंड दैट। कोई ना कोई तो पर्पस होगा। बट येस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी अपना एक पर्पज है। द मेन पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टू डिजाइन अ विजन एंड फ्रेमवर्क। अब हम क्या कहेंगे, मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज है डिजाइन अ फ्रेमवर्क, डिजाइन अ फ्रेमवर्क और एंड विजन। अब ये विजन और फ्रेमवर्क वो किसके लिए डिजाइन करना चाहते हैं? स्कूल एजुकेशन। क्या लगता है आपको, ओनली फॉर स्कूल एजुकेशन दैट इज टू बी डिजाइंड? No, not only for school education but for higher education also. But for higher education also. So in new education policy, the purpose behind new education policy is design a framework and vision for school education and higher education. School education आप study भी कर चुके हैं। Earlier it was, yes, earlier it was 10+2, है ना। But now अब क्या है ये? नाउ इट इज 5 + 3 + 3 + 4। अब ये 5 + 3 + 3 + 4 है। देयर आर अदर चेंजेज ऑल्सो, है ना। अर्लियर चाइल्ड कुड गेट एडमिशन। पहले चाइल्ड क्या करता था? डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता था। बट नाउ अब जो चेंज हुए हैं वो क्या करेगा? उसके इनिशियल जो स्टेज होंगे, KG, LKG और UKG, ये वाली स्टेजेज वो कंप्लीट करेगा स्कूल में, है ना। अर्लियर फर्स्ट क्लास में, अर्लियर इट वाज 10+2, यानी कि 12 साल
स्कूल के अंडर, उनकी गाइडेंस के अंडर वर्क करता था। अब 5+3+3+4 यानी कि अब 15 साल बच्चा स्कूल की गाइडेंस के अंडर वर्क करेगा, है ना। एंड पहले जो एजुकेशन थी वो 6 ईयर से स्टार्ट होती थी, नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 3 ईयर्स। अब ये 3 सालों से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। क्लियर। नाउ देर आर अदर चेंजेस ऑल्सो। पहले वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होता था, वोकेशनल ट्रेनिंग होगा नाउ। पहले इंडियन लैंग्वेज नहीं स्टडी करते थे, अब वो इंडियन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी ऑप्ट करेंगे। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, बट अब यहां पर फॉरेन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। अर्लियर कंप्यूटर कोडिंग नहीं सिखाई जाती थी, नाउ देयर इज प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर कोडिंग। कंप्यूटर अर्लियर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, नाउ देयर इज प्रोविजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, so this is the whole purpose, but we have discussed the schooling education related changes. In our next video we will study कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से चेंजेज हुए हैं। अब ग्रेजुएशन होगा, MSc होगा, MA होगा, या in place of that something different will be there, that we are going to study in our next video. Okay, so concept related to higher education we are going to study in our next video. So let's complete it. अभी हम इसको complete करते हैं, and the next point is related to foreign universities. अब ये foreign universities वाला concept क्या है? Now अब देखिए बेटा, अब NEP 2020 में क्या होगा। अब जो foreign universities हैं, foreign universities, they can open their branch here in India. वो इंडिया में अपनी सब ब्रांचेज को ओपन कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। अब आप सोचेंगे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांचेज यहाँ आकर ओपन करेंगे, देन व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर इंडिया। सो इंडिया विल गेट अ वर्ल्ड कॉम्पिटिटर। इंडिया को एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटर मिलेगा। क्लियर। अर्लियर दिस वॉज, ये कॉन्सेप्ट पहले भी रखा गया था बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट चेंज इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट जो चेंज है NEP में, दैट इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट्स। अब आप कहेंगे डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या चेंज है। सो अगेन यस, ऑब्वियसली अभी 1986 एजुकेशन पॉलिसी NPE में भी डिपार्टमेंट है, वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इलेबोरेट किया गया है। देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स। 6th पॉइंट, देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट्स। अब ये डिपार्टमेंट कैसे होंगे सेपरेट डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट रिलेटेड टू सिलेबस, department related to syllabus and curriculum. There will be separate department for syllabus and curriculum that will decide curriculum and syllabus for the students, and after that there will be department related to, एक और department होगा that will be related to regularity. अब आप कहेंगे रेगुलरिटी में क्या होगा? रेगुलरिटी ऑफ टीचर्स विल बी चेक, रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी रेगुलरिटी, उनकी पंक्चुअलिटी, इस तरीके का एनालाइज किया, इस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, असेसमेंट होगा इस तरीके से। फॉर दैट देयर विल बी डिपार्टमेंट, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी डिपार्टमेंट दैट विल बी रिलेटेड टू द salary of teachers and scholarship of students.
वो डिपार्टमेंट टीचर्स की सैलरी से रिलेटेड होगा और स्कॉलरशिप की, यस, स्कॉलरशिप की, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप से रिलेटेड होगा। सिलेबस एंड करिकुलम डिपार्टमेंट होगा, रेगुलरिटी डिपार्टमेंट होगा, एंड लास्ट बट लास्ट तो हम नहीं कहेंगे, एंड देयर विल बी रिजल्ट डिपार्टमेंट। इस तरीके से, अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके से सेपरेट डिपार्टमेंट जो होंगे वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, फ्रेम किए जाएंगे। यस, दैट इज इन एग्जिस्टेंस बट देयर आर सम चेंजेज। क्राइटेरिया डिसाइड किया गया उसके लिए, रिजल्ट डिपार्टमेंट, सैलरी डिपार्टमेंट, रेगुलरिटी डिपार्टमेंट, असेसमेंट डिपार्टमेंट, सिलेबस एंड करिकुलम डिपार्टमेंट। सो दिस इज, और वी कैन से दैट दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन New Education Policy 2020 and NPE 1986. I hope these things are clear to you. Let's recapitulate it with, yes, इसको थोड़ा recapitulate करते हैं within 1 or 2 minutes. So the very first concept is, so previous policy that is based on the concept of access and equality, that is related to the equal education for all. Now the concept of quality education is going to be implemented in new education policy. Second thing is related to school fee. Earlier there was provision like school could charge the fee according to infrastructure, according to the facility. Now there will be different kind of categories for the private school. According to those categories they can charge fee from the students. Okay, now there is change in making of result also. Yes, there was a good pattern of result preparation was there, but there is change. कुछ सेल्फ असेसमेंट के पार्ट को ऐड ऑन किया गया है, फ्रेंड्स की तरफ से असेसमेंट के पार्ट को ऐड ऑन किया गया है, टीचर्स की तरफ से असेसमेंट के पार्ट को ऐड ऑन किया गया है, एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स विल इम्प्रूव the thinking level of the students and will improve the good behavior among the students. क्योंकि उन्हें पता है उनके behavior को जज किया जा रहा है, according to that they are going to get their grades and marks, and obviously वो सभी के साथ अच्छा behave करेंगे. Okay, and now the foreign universities can open their branches there in India. In this way India will get a world competitor. इंडिया को एक क्या मिल जाएगा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड टू जीडीपी. नाउ इन दिस करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वी आर गेटिंग 3% ऑफ जीडीपी ऑन द एजुकेशन, बट इन न्यू एजुकेशन अप्रोक्सीमेटली 3%, एंड नाउ इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी वी विल गेट 6% on education. So these are the some changes related to school, like the purpose behind new education policy is to frame a vision, okay, design a vision and frame for schooling education, for higher education. तो हमने schooling education के concept को discuss कर लिया है. In our next video we are going to discuss the concept of higher education. I hope it's clear to you. Thank you. God bless you everyone.